اور فیسیلیٹیٹر رابطہ کار اور کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کا اسٹاف، خاص کر مہوش اقبال جو اس پروگرام کی کوآرڈینیٹر انچارج ہیں، عبداری صاحب اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، میں بالخصوص شروع میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ سارے لوگ کلام کے لاکھ دوست میں شامل ہوں۔ تو میں اپنی طرف سے مہوش کو بھی، فادر ارشاد کو بھی اور ساری انتظامیہ کو بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو یہاں بائبل اسٹڈی میں لوگ آتے ہیں ان کو لازمی کلام کے لاکھ دوست میں شامل ہوگا۔ اس دروازے سے اندر وہی ہے جو کلام کے لاکھ دوست میں شامل ہو، تو اس بات پر توجہ دی جائے اور جتنا بھی ہو سکے اس پہ عمل کیا جائے۔ دوسری دعوت ہے خط و کتابت کے ذریعے بائبل مقدس کا کورس، اسٹڈیز ان ببلیکل سائنسز SBS بائبل مقدس کے مطالعہ کا کورس جو 4 سال پر ہے۔ جو 1 سال کرنا چاہے اس کو بھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جو 2 سال کرنا چاہے اس کو بھی ملتا ہے، جو 3 سال کرنا چاہے، 4 سال کرنا چاہے اس کو بھی سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ پہلا سال بائبل مقدس کا تعارف ہے، دوسرے سال میں بائبل مقدس کے موضوعات ہے، تیسرے سال میں بائبل مقدس کا سیاق و سباق ہے، اور چوتھے سال میں ہم تھوڑا تھوڑا تفسیر کا تعارف دیتے ہیں۔ اور ہماری خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں 10ویں جماعت سے اوپر وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہوں، بائبل اسٹڈی میں دوران سال یہ خط و کتابت کے ذریعے بائبل اسٹڈی میں داخل ہوں، شامل ہو، رجسٹرڈ ہو۔ ابھی یہ شروع ہو چکا ہے اس سال کا کورس، آپ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ 2 ماہ کے بعد سوال نامہ آتا ہے اور وہ سوال نامہ پر کر کے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے، باقی آپ کو نصابی کتابیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو اس کورس کے لیے جو ابھی جس کا شروع کرنے کو ہے سلسلہ وار بائبل اسٹڈی 2021، اس کے لیے بھی نصابی کتابیں ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے بعد، اپنی بائبل اسٹڈی کے بعد وہ کتابیں دکھاؤں گا جن کی مدد سے سارا سال بائبل اسٹڈی ہوگی، مقررین بھی وہ پڑھیں گے اور آپ بھی اگر گھروں میں وہ پڑھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح ہر اسٹوڈنٹ کے اسکول بیگ میں اس کے بستے میں کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح ٹیکسٹ بک نصابی کتابیں ہوتی ہیں ہر کام کے لیے۔ تو یہ ہم اس سال سے شروع کر رہے ہیں کہ ہر سال جو سلسلہ وار بائبل اسٹڈی ہوگی پاکستان کے سارے پیرشوں میں جتنے بھی پیرش کرنا چاہیں ان کے لیے ٹیکسٹ بک بھی، نصابی کتابیں بھی ہوگی۔ تو بائبل اسٹڈی کے آخر پر ہم وہ نصابی کتابیں آپ کو دکھائیں گے۔ بائبل اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے جو اس کا آغاز یا ویسے کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو پاک کلام کی چند تلاوتیں پڑھاؤں گا تکوین کی کتاب سے، اور پھر ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے۔ یہ بھی ہمارا مضمون ہی ہے۔ تو ہم تکوین کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت لیں گے، آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت جی، ابتدا پہلا لفظ جو جس سے بائبل مقدس شروع ہوتی ہے کیا ہے؟ یہ لفظ یاد رکھ رہا ہے کیونکہ میں بعد میں تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا۔ میں ابتدا میں، ابدیت میں اور تاریخ میں فرق بتاؤں گا۔ جی دوبارہ شروع سے پڑھیے پہلی آیت۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وقت کیا ہے اس آیت میں؟ وقت کیا بتایا ہے؟ ابتدا میں۔ اور کام عمل کرنے والا کون ہے؟ خدا نے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ بہت اچھا۔ اس طرح آیت کو علیحدہ کر کے کون کر رہا ہے کام، کیا کام کر رہا ہے، کس وقت کر رہا ہے، جب ہم آیت کو ایسے پارسنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا علیحدہ کرتے ہیں تو آیت ہمارے لیے کھل جاتی ہے۔ اس سے یہاں اگر آپ چاہیں اس میں جو سب سے اہم ترین مضمون ہے وہ ہے خدا خالق، کہ خدا خلق کرتا ہے، خدا خالق ہے۔ کیا کیا اس نے خلق کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، آسمان اور زمین یہ ایک محاورہ ہے، ہم بھی محاورے بولتے ہیں، میں کچھ مثالیں دوں گا اردو زبان سے بھی، لیکن عبرانی زبان میں یہ زیادہ سٹائل ہے، انداز ہے۔ کیا سٹائل ہے؟ 2 انتہاؤں کا نام لیا جاتا ہے،
اور اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ان دو انتہاؤں کے اندر جو کچھ بھی شامل ہے اس میں شامل ہے. یہاں دو انتہائیں کون سی ہے؟ آسمان. بس نہیں, ایک پہلے بتائیں جی, ایک انتہا کون سی ہے؟ آسمان. دوسری انتہا تو یہ بہت بڑی انتہائیں ہیں. جیسے ہم کہیں جی مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, یا کراچی سے پشاور تک, یا منوڑا سے لنڈی کوتل تک, یا بچوں سے بزرگوں تک, یا چھوٹے سے لوگوں سے بڑے بڑے لوگوں تک. تو یہ ہم جب دو انتہائیں بولتے ہیں تو صرف وہ انتہائی نہیں ہوتی, اس میں صرف آسمان اور زمین ہی نہیں ہے, بلکہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے. خدا نے خلق کیا آسمان اور زمین, لیکن جو کچھ بھی ان کے اندر ہے, میں تھوڑی دیر آگے چل کے علم الکائنات کے بارے میں بتاؤں گا, جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ بھی خدا نے خلق کیا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے, پہلے باب کی 26ویں ہے, کوئی اور پڑھے 26ویں ہے. اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں. اوکے, تھوڑا تھوڑا علیحدہ کر کے جی دوبارہ پڑھیے. اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں. جی, ہم بعد میں اس پہ بات چیت کریں گے. اپنی صورت پر اپنی مانند, تو یہ خدا کی اپنی خواہش ہے کہ انسان کو کیا خوبیاں, کیا وصف دینا چاہتا ہے, کیسے خلق کرنا چاہتا ہے. جی اگلی بھی پڑھ لیں اپنی آیت. اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے. تو اس میں میں بعد میں اس کی تشریح کروں گا. کائنات کے 3 حصے بتائے گئے ہیں. ایک پانیوں سمندر کی مچھلیوں, دوسرا فضائی آسمان کے پرندوں, اور دوسرا زمین پر یہ بری جو بھی خشکی پہ زمین پہ رہتا ہے. اس کی میں بعد میں تھوڑی سی تشریح کروں گا, لیکن یہ 3 حصے آپ نے یاد رکھنے ہیں. پانیوں پر, آسمانوں میں, فضائی خلائی اور زمین پر. جس 27ویں آیت میں اور پڑھے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا, نر اور ناری انہیں پیدا کیا. اوکے, تو یہ پہلی آیت میں جو باتیں تھی اس سے دہرایا گیا ہے, اپنی صورت پر پیدا کیا, اپنی مانند پیدا کیا, لیکن ایک اضافہ کیا گیا ہے, نر اور ناری پیدا کیا. 28ویں آیت میں ہم پڑھیں گے. اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا, یہ برکت کے جز ہے. برکت کیا کیا دی؟ جی پڑھیے. کہ پھلو بس پھلو. دوسری برکت اور بڑھو, بس. تیسری برکت, اور زمین کو معمور و محفوظ. اس برکت کے اندر بھی 2 برکتیں ہیں. پہلی کون سی ہے؟ الف. نہیں, ایک تو ہے نا انہیں برکت ہی کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. تو اس جو آخری جز ہے اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی تو نہیں, بہت بڑی ہے. زمین کو معمور اور محکوم کرو. جی آگے پڑھیے. اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں. یہ 3 حصے آئے ہیں کائنات کے, آپ کو کیچ کر رہے ہیں جو پہلے میں نے بتایا ہے اس آیت میں. اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں. 3 جز نظر آ رہے ہیں آپ کو, سمندر میں, آسمان پہ اور زمین پر. یہ میں بعد میں تشریح کروں گا. جی آگے. حکومت کرو. اب برکتیں گنتے ہیں. پہلی برکت تھی, بولو کون سی؟ پھلو. دوسری بڑھو. تیسری اور چوتھی حکومت کرو. آیت کے آخر پر حکومت کرو. تو یہ ساری برکتیں یہ انسان کو دی گئی ہیں. ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. 2 باب کی 7ویں ہے. 2 باب کی 7ویں ہے. اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں بعد میں اس کی طرف اشارہ دوں گا کہ پہلے باب میں خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.
अब खुदा खुदा, बस अभी सिर्फ आपने नोट करना है, जहन में रखना है, इसलिए मैं बाद में करूंगा जी। और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। ओके, 8वीं आयत पे और पढ़े। और खुदावंद ने खुदा मशरिक की नहीं, आराम से, कोई जल्दी ना करे, दोबारा पढ़े। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। ओके, पहले 7वीं आयत में इंसान की बात की गई है, 8वीं आयत में किसकी बात की है, क्या बनाया गया है? अदन, पहले इंसान फिर अदन जी, बाग। और इंसान को इसे उसने बनाया, उसमें रखा। ओके, 9वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे। 2 बातें बताई गई उन दरख्तों की। मैं जानबूझ के आपको रोक लेता हूँ क्योंकि आप तो रुकते ही नहीं है, तो जब तक रुकेंगे नहीं आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ पढ़ना तिलावत करना काफी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो, आहिस्ता आहिस्ता और गहराई में जाके मतन में जज्ब होने से कुछ ज्यादा पता चलता है। तो दरख्तों को देखें, किस तरह के दरख्त हैं? जो देखने में खुशनुमा, कि देखते ही इंसान कहे भी ये तो खाने का, आंखों को भला लगे, देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज। ऐसे फ्रूट को कौन छोड़ता है जो देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज हो? जी आगे पढ़िए, आपकी आयत अभी बाकी। जमीन से उगाया और जमीन से उगाए, उगाए और बस और नहीं साथ मिलाना, पहले सांस लेना है। जमीन से उगाए, फिर आगे और पढ़े। और बाग के वसत में शजरे हयात और नेकोबत की पहचान का दरख्त। 2 दरख्त बाग के वसत में, बेशुमार हजारों लाखों दरख्त है, लेकिन 2 खास दरख्त है बाग के दरमियान में, वसत में, मिडल में, जिनके नाम भी बताए गए। एक का नाम बताएं, शजरे हयात, जिंदगी का दरख्त, जो उसका फल खाता है हमेशा तक जिंदा रहता है, ट्री ऑफ लाइफ, शजरे हयात। दूसरे का बताएं, दरख्त का नाम लेते हुए आप झिझकते शर्माते हैं, या सेब का, अमरूद का, अनार का होता तो आपने खुशी से ले लेते। ये बहुत अहम है, नेकोबत की पहचान का दरख्त, कि जो इस दरख्त के फल खाता है उसमें इम्तियाज, पहचान आ जाती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है, पहचान आ जाती है। ये अवेयरनेस, एक शऊर आ जाता है, एक आगाही आ जाती है, इल्म आ जाता है, मार्फत आ जाती है, और इम्तियाज, डिसर्नमेंट आ जाता है उसमें, तमीज करना, इम्तियाज करना। बहुत अच्छा दरख्त है, दोनों ही अच्छे हैं जी। अभी हम थोड़ा सा शिफ्ट करके 22वीं आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। ओके, अभी हम 23वीं आयत भी पढ़ेंगे। और इंसान ने कहा, आप ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई है। ठीक है, 24वीं आयत पे और पढ़े। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ओके, अभी हम 3 बाब की 2 आयत पढ़ेंगे, दूसरी आयत, 3 बाब की दूसरी आयत, 3 बाब की दूसरी आयत। और औरत ने शाम से कहा कि बाग के हर दरख्त का फल हम खाते तो हैं, बस सारे बाग के एक एक दरख्त का फल हमें ज्यादातर हम खाते हैं। तीसरी आयत, मगर जो दरख्त बाग के दरमियान है, खुदा ने सिर्फ उसकी बाबत हुक्म दिया कि फल ना खाना और ना छूना, वरना मर जाओ। ठीक है, चौथी आयत, खुदा ने कुछ कहा था, सांप कहता है ये जो कुछ खुदा ने कहा तुम्हें गलत कहा है, फ्रेब है, झूठा है, खुदा ऐसा नहीं होना, तुम हरगिज़ ना मरोगे जी। चौथी आयत, 5वीं आयत, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन
یہ کوئی نئی بات تو نہیں، وہ تو درخت کا نام ہی ایسا تھا، خدا نے بتا دیا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے یہ ہوتا ہے جی۔ اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اوکے، چھٹی آیت بھی پڑھیں گے آپ۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اس درخت کی 3 صفتیں یہاں بتائی گئی ہے، ذرا ایک بتائیے مجھے۔ پہلی صفت کی کیا ہے؟ کھانے میں اچھا، دوسری دیکھنے میں خوشنما، اور تیسری عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے جی۔ آگے پڑھیے۔ تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اب ہم بس ٹھیک ہو گیا، اب ہم آپ کی آیت مکمل ہو گئی غالباً، یہ بھی اور نہیں اس نے کھایا، ٹھیک ہے شاہ، تھینک یو۔ چوتھے باب کی دوسری آیت، ہم اہم آیات پڑھ رہے ہیں، ویسے تو بائبل مقدس کی ہر آیت اہم ہے، لیکن ہم اپنی بائبل اسٹڈی کے لیے جو آج کے ہمارے مضمون کے لیے اہم ہے ان کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری آیت، چوتھے باب کی دوسری آیت۔ اس نہیں، اس پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ میں صرف آپ کے جنرل نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی پرانی سے پرانی تہذیبوں اور معاشرتوں میں 3 بڑی معاشرتیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے شکاری۔ جب لوگ غاروں میں رہتے تھے، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی گلے مویشی نہیں رکھتے تھے، تو وہ شکار کرتے تھے، جو کچھ مل گیا کھا لیا، جس دن نہ ملا روزہ نہ کھایا۔ پھر ایک وقت آیا ہزاروں سالوں کے بعد، انسان نے سوچا جو میں شکار کرتا ہوں کبھی مجھے ملتا ہے نہیں ملتا، کیوں نہ ہو میں جانوروں کو پالتو بناؤں، اور پھر چرواہا تہذیب آئی۔ اب یہ بہت اہم ہے مذہب کو سمجھنے کے لیے، میں 1-2 مثالیں دوں گا۔ جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو چراگاہیں ڈھونڈنے کے لیے موسم کے مطابق بدلتے رہتے ہیں جگہ اپنی رہائش، تو وہ تمبوں میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، جہاں چراگاہیں ہوں وہاں خیمے لگاتے ہیں۔ 6-7 مہینے جب وہ چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، گھاس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے خیمے لے کر دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ مکان نہیں بناتے، ان کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں، چرواہے۔ ہمارے جتنے بھی بائبل مقدس کے موج داد ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سارے بھیڑ بکریاں پالنے والے تھے، یہ چرواہے تھے اور یہ خانہ بدوش تھے، خیموں میں رہتے تھے، گاؤں میں نہیں۔ تیسری تہذیب ہے کسان۔ اس تہذیب نے زراعت شروع کی، سوچا کہ ہم فصلیں اگائیں، اور جب فصلیں اگائیں تو انہیں 6 مہینے وہاں انتظار کرنا پڑا، بیٹھنا پڑا، تو کسانوں نے گاؤں آباد کیے، کچھ انہوں نے بڑے بڑے کمرے بنا لیے ذخیرہ کرنے کے لیے، گندم سارے سال کے لیے ذخیرہ کر لی، اور بھی سبزیاں فصلیں ذخیرہ کر لی۔ تو یہ کسانوں نے یہ ابتدائی شروع میں گاؤں بنائے۔ بعد میں جب بادشاہ آئے تو انہوں نے شہر آباد کیے، ان کے فوجوں کے لیے، ان کے تخت کے لیے شہروں کی ضرورت تھی۔ تو پہلی سب سے معاشرت، انسان کی سب سے جو پہلی معاشرت ہے تاریخ میں، ارتقاء میں، وہ ہے شکاری، ہنٹر کلچر، شکاری ثقافت۔ دوسرے نمبر پہ ڈیولپ ہو کے ترقی کر کے آتی ہے چرواہا، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے کسان۔ چرواہے اگر جب خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی نذرانہ دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ آپ گیس لگائے، چرواہوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ بکریاں، تو وہ قربانی دیتے تھے جانور کی۔ اور کسان جب نذرانہ دیتے تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسانوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اناج، گندم۔ تو وہ گندم اور میدے کے نذرانے دیتے تھے، روٹیاں، جو بھی کلچے، پراٹھے، جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ جو 2 علامتیں ہیں یہ سارے مذہبوں میں ہوتی ہیں، کچھ قربانی کا حصہ، کچھ نذرانے کا حصہ۔ جب ہم قربانی کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے جانور کا ذبح کرنا،
और जब हम नजराने कहते हैं तो इसके मानी है फ्रूट और गंदम फसलों का नजराना और अपने मैदे की कुर्बानियाँ, आटे की कुर्बानियाँ और बहुत सारी बातें हैं। तो पुराने अज़्र में भी ये ईदें होती थी। और अगर आप और मैं वैसे एक इस्लाम मज़हब से मिसाल देना चाहता हूँ। इस्लाम मज़हब में दो बड़ी ईदें कौन सी होती हैं? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। एक का ताल्लुक उससे है, एक का ताल्लुक उससे। अब आप मुझे बताएं किसका ताल्लुक उससे और किसका ताल्लुक उससे है? चरवाहा कल्चर से है। वो अभी नहीं है, अभी तो हम सब शहरों में रहते हैं, लेकिन वो चरवाहा कल्चर की जो रस्म और रवायत है, जो मजहब में है, वो तो जारी है। और ईद उल फितर का ताल्लुक नजराना, हम उसे इसलिए की ईद भी कहते हैं, लूनी ईद, बलूनी ईद, तो ये भी नाम चलते हैं। तो यीशु मसीह की जिंदगी में जब आखिरत का सैक्रामेंट मुकर्रर किया गया तो वो वहाँ जानवर की कुर्बानी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपने बदन की कुर्बानी दी। इब्रानियों के नाम इसकी बहुत वजाहत करते हैं। उन्होंने भेड़ों बकरियों की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर वो काहिन बने, बल्कि काहिन से भी ज्यादा काहिन आज़म बने। तो जब हम यूखरिस्ट मनाते हैं तो ये दोनों कल्चर को, एक तरफ हम देखो खुदा का बर्रा भी कहते हैं और दूसरी तरफ रोटी और नए का नजराना भी पेश करते हैं। ये दोनों कल्चर जो हैं, सकाफतें जो हैं, ये हमारे अल्तार पे मौजूद होती हैं। चौथी आयत में, दूसरी आयत में आपने दो सकाफतों का जिक्र है, तो मुझे बताना है। दूसरी आयत में पढ़े, ध्यान करें जी। दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काहिन किसान बना। बस दो सकाफतें नजर आती है इसमें, एक चरवाहा और एक किसान। जब चरवाहा खुदा को नजराना देगा तो वो क्या देगा? कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी। किसान नजराना देगा तो अपने फलों की, फसल की कुर्बानी देगा। जी आगे आप पढ़ते हैं तीसरी आयत। कुछ मुद्दत के बाद यूं हुआ कि कायन अपनी जमीन के फल में से खुदावंद के वास्ते हदिया लाया। जमीन के फल में से, क्यों? वो खुदावंद, मैं जानबूझ के आपको मजबूत करने के लिए ये दो बातें बता रहा हूँ। शेपर्ड कल्चर और फार्मर कल्चर के, चरवाहा तहजीब और किसान तहजीब। चलो जी, और चौथा, और हाबिल भी अपनी पनौटी और मोटी भेड़ बकरियों में से लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदियों को मंजूर किया। ओके, चलो थोड़ी सी बात आगे चलती है, हम बात को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं। तो 8वीं आयत पढ़ते हैं। 8वीं आयत, और काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि आप खेत को चलें। और जब वो खेत में थे, अब ये तो आम सी भाइयों में, फैमिलीज में, देहातों में बात होती है, आप खेत में चले, बाहर चले, घूमे फिरे, उसको तो नहीं पता था क्या होने वाला है। और जब वो खेत में थे, आगे पढ़िए। तो काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके उसे मार डाला। ओके, तो ये पहला भाई के हाथों कत्ल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्राकरसाइड। एक सुसाइड होता है, खुदकुशी, एक भाई को भाई कत्ल करना, ये फ्राकरसाइड, ये अंग्रेजी का एक लफ्ज है। ये एक पहली मिसाल है बाइबल मुकद्दस में तहजीबों में। 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। और खुदावंद ने काहिन से कहा, नहीं, काहिन नहीं, काइन काइन जी, काइन से कहा, शाबाश। काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। उसको पता तो है, आपको पता है, आपको पता है कि उसको पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है। आप खेत में चले तो मुझे क्या पता? पहला गुनाह कत्ल, दूसरा गुनाह झूठ। झूठ में भी फ्रॉड खुदा के साथ। जी, मैं नहीं जानता। उसने कहा, मैं नहीं जानता। वाह। क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूँ? सवाल पूछने वाले पे इल्जाम भी दे रहा है। पहला तो कह रहा मैं नहीं जानता, ये तीसरी गलती गुनाह हो गया, इल्जाम तराशी। तो मैंने क्यों पूछना भाई, मुझे क्यों पूछते हो? मैं भाई का चौकीदार दे दो, भाई का निगहबान हूं। जी आगे बात चलती है, हम थोड़ा सा और पढ़ ले। छठा बाप की 5वीं आयत। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ मारा।
हम अगली आयत भी पढ़ेंगे, छठी आयत भी। तो वो जमीन पर इंसान के पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। ओके, सातवीं आयत। अब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया बालों हवानों और कीड़े मकोड़ों और आसमान के परिंदों के रूबे जमीन पर से मिटा डाला। ओके जी, आठवीं आयत। मगर नूह ने खुदावंद की आंखों में मकबूलियत पाई। बहुत खूबसूरत आयत है। मगर नूह ने खुदावंद की आंखों में मकबूलियत पाई। तो ये एक नया किरदार बाइबल मुकद्दस में छठे बाब से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हजरत नूह। और फिर जी 9वीं आयत। नूह का नसबनामा ये है, नूह अपनी पुस्तक में सादिक और कामिल आदमी था। दो सिफ्तें बताई गई हैं नूह की, और ये बहुत ही बड़ी सिफ्तें हैं। इन सिफ्तों के अंदर बहुत सारी सिफ्तें होती हैं। पहली सिफ्त क्या है? सादिक जी। और वो दूसरी सिफ्त क्या है? कामिल जी, सादिक और कामिल जी। और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। ये तीसरी सिफ्त है, खुदा के साथ साथ चलता रहा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 17वीं आयत हम पढ़ेंगे इसी बाब की 17वीं आयत। और देख, मैं जमीन पर बड़े तूफान का पानी लाऊंगा कि हर एक जिस्म को जिसमें जिंदगी का दम है आसमान के नीचे से हलाक करूं, और सब चीजें जो जमीन पर हैं फना होंगी। ओके, 18वीं आयत में मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा। ये पहली बार एक अहद कायम किया जा रहा है। हम थोड़े से और अहदों की भी बात करेंगे, लेकिन नूह के साथ, हजरत नूह के साथ, बाद में हजरत इब्राहिम, बाद में हजरत याकूब, और फिर बिल आखिर हजरत मूसा के साथ, जिसको हम शरीयत भी कहते हैं, जो वो सीना पर मिली, वहाँ अहद भी बांधा गया, जिसको हम 10 अहकाम भी कहते हैं। मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा। जी आगे पढ़िए। और तू कश्ती में दाखिल होगा, तू और तेरे साथ बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां भी। ओके, अभी हम 22वीं आयत पढ़ेंगे। और नूह ने सब कुछ जैसा खुदा ने फरमाया था वैसा ही किया। बाइबल मुकद्दस में ये एक ऐसे अल्फाज है, एक आयत है जो 100% ताबेदारी और फर्माबरदारी को जाहिर करते हैं, और सब कुछ जैसा खुदा ने फरमाया था वैसा ही किया। माँ मरियम की जिंदगी में, यीशु मसीह की जिंदगी में ये इजहार है। माँ मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये यही वजह, यीशु मसीह ने मरते वक्त कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, या खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यही है जो सब कुछ खुदा ने फरमाया था वैसा ही किया। अभी हम 7वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराना के साथ कश्ती में दाखिल हो, क्योंकि मैंने तुझ ही को इस पुष्प में रास्तबाज पाया। अब थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, 11 आयत पढ़ेंगे इसी बाब की। नूह की उम्र के 600वें वर्ष बरस में दूसरे महीने की 17वीं तारीख को उसी दिन अकीब गहराव के तमाम चश्मे फूट निकले और आसमान की तमाम आबशारें खुल गई। ये तूफान का अजीम तूफान, दुनिया में ये तूफान आया था, सारी दुनिया में अजीम तूफान, इसे कहते हैं नूह का तूफान भी कहते हैं। ये उसका आगाज है। ये 12वीं आयत। और 40 दिन और 40 रात तक जमीन पर बारिश होती रही। ये बाइबल मुकद्दस में एक मुहावरा है, 40 दिन और 40 रात। अगर इसमें 4-5 घंटे कम भी हों फिर भी उन्होंने 40 दिन और 40 रात ही कहना है। अगर 2-3 घंटे ज्यादा हो फिर भी उन्होंने 40 दिन और 40 रात ही कहना है। यहूदियों में कुछ अदद मुकद्दस होते थे। 40 दिन और 40 रात का रियाजी से, गिनती शुमार के अदद निकालने से का कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुहावरा है जो इस्तेमाल किया गया बाइबल मुकद्दस में बहुत जगहों पे, 40 दिन और 40 रात तक जमीन पर बारिश होती रही। जी 22वीं आयत पढ़ेंगे आप, इसी आयत इसी चैप्टर की। सब जो जिंदगी का दम रखते थे और जो पृथ्वी पर चलते थे मर गए। ओके, 23वीं आयत। बल्कि हर जानदार जो रूए ज़मीन
ओके, अभी हम 8वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। 8वें बाब की पहली आयत। फिर खुदा ने नूह को और सब जानदारों और मवेशियों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद करके जमीन पर एक हवा चलाई और पानी कम होने लगा। सैलाब जो था खत्म हो गया, अब पानी भी कम होने लगा। दूसरी आयत, 8वें बाब की दूसरी आयत। और इन्हीं गहराओं के तमाम चश्मे और आसमान की तमाम आबशारें बंद हुई और बारिश थम गई। तीसरी आयत। और पानी जमीन पर से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और 150 दिन के बाद घट गया। ओके, चौथी आयत। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कवा अरारात पर कश्ती ठहर गई। ठहर गई। ये पहाड़ का नाम है अरारात। ये आपने बोलना है एक दफा, अरारात। एक दफा और बोलेंगे आपको याद रहेगा, अरारात। ये वो पहाड़ है, आजकल तुर्की और ईराक के बॉर्डर के तरफ है वो अरारात, जहाँ तूफान नूह के बाद हजरत नूह की किश्ती वहाँ ठहरी थी, अटक गई थी, ठहरी थी, और फिर पानी निकलने लगा, कुछ तो कम होने लगा, जमीन पर खुशी होने लगी। तो बाइबल मुकद्दस में ये पहाड़ बहुत मशहूर है, अरारात। ठीक है, एक दफा फिर बोल ले, अरारात। तो अभी हम इसी बात की 10वीं आयत पढ़ेंगे। 10वीं आयत। फिर उसने 7 रोज और ठहर कर कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया। एक कबूतरी को बाहर निकाला, उड़ाया। 11वीं आयत। और वो शाम के वक्त उसके पास फिर आई जी। और जैतून की एक टाटी सब्ज पत्तों वाली उसके मुंह में थी। ओके, पहले भी 9वीं आयत में भी उसने 8वीं आयत में कबूतरी उड़ाई थी, लेकिन वो पानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, तो फिर वापस आ गई थी, और ये भी वापस आई है। लेकिन इसने अपने मुंह में, चोंच में जैतून की टहनी लेकर आई। जैतून की टहनी अमन की अलामत है, तो बहुत ये खूबसूरत अलामत इस्तेमाल में की गई है। तब नूह ने मालूम किया जी, नूह ने मालूम किया कि जमीन के पानी जमीन पर से जाता रहा। दरख्त आ गए, वो जैतून की टहनी लेकर आई। और 12वीं आयत में और वो 7 दिन और ठहरा और फिर कबूतरी को उड़ाया जो उसके पास फिर वापस ना आई। बिल्कुल जमीन ठीक ठाक हो गई। चलो 9वें बाब की पहली आयत। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और इन्हें कहा ये जरा बरकत गौर से पढ़िएगा जी। उन्हें कहा, कि फलो और फड़ो और जमीन को मामूल करो। ये बरकत आपने पहले भी सुनी है आज ही, है पहले बाब की 27वीं आयत में, 27वीं आयत में जी। अभी इसी बाब की हम 9वीं आयत पढ़ेंगे। 9वीं आयत। और खुदा ने नूह से और इसके बेटों से कहा। ओके, आपके लिए तो बहुत छोटी सी आयत आई है जी। 9वीं आयत को, और ये 8वीं आयत थी, 9वीं आयत आप ही पढ़ लें। देखो मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारी बात तुम्हारी नस्ल से। ज्यादातर जो ऐद होते हैं नस्लों के साथ होते हैं। तुमसे ऐद बांधा गया है, लेकिन इसकी बरकतें आने वाली नस्लों से भी हैं। तो अभी हम आगे भी है, लेकिन मैं अभी सारे नहीं पढ़ूंगा। ये हम 17वीं आयत पढ़ लेते हैं। 17वीं आयत। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान होगा जो मैंने अपने और जमीन के हर जानदार के दरमियान कायम किया है। अभी हम 11 बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। 11 बाब की। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। ओके, दूसरी आयत भी पढ़े। और जब वो मशरिक से रवाना हुए तो उन्होंने शिनआर शिनआर शिनार के गुलाम में एक मैदान पाया। और तो ये बादल के बुर्ज की बात है। ये भी हम सारी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, सारा वाक्य नहीं पढ़ेंगे, ये जुबानों में इख्तलाफ डाला गया। तो हमारा आज का बाइबल स्टडी का मौजू है पहले बाब से लेकर 11 बाब तक। अभी हम थोड़े से जल्दी में
हेडिंग्स देखेंगे, सुर्खियां देखेंगे। पहले बाब की सुर्खी जरा जल्दी से हम, पहले बाब की पहली है सुर्खी क्या है? कायनात की तख्लीक। ले ले सारे निकाल ले। तकवीर की किताब पहला बाब पहली है जी, क्या सुर्खी है? कायनात की। और फिर 26वीं आयत में एक और सुर्खी है। तो अगर आपसे पूछे कि पहले बाब में दो बड़े मजमून क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कायनात की तख्लीक और इंसान की पैदाइश। अब दूसरे बाब में चलते हैं। चौथे बाब की जो दूसरा हिस्सा, दूसरे बाब की चौथी आयत का दूसरा हिस्सा बागे अदर, और 18वीं आयत औरत की तख्लीक, और 3 बाब की पहली आयत और 9वीं आयत गुनाह की सजा, और 14वीं आयत। यहां मैं 15वीं आयत पे बहुत जोर देना चाहता हूं। 15वीं आयत, ये जो 15वीं आयत है, इसमें निजात का वादा किया गया है, निजात दहिंदा का वादा किया गया है। और बहुत सारे आलम इसमें पहली निजात की बिशारत देखते हैं। कुछ तो कहते हैं ये पहली अंजील की झलकी है, अंजील की पहली झलकी, अंजील अव्वल इसे कहते हैं। 3 बाब की 18, 3 बाब की 15 के औरत की नस्ल के दरमियान से वो तेरे सर को कुचलेगी और उसकी रेड़ी की ताकत में रहेगा। तो यहाँ बहुत सारे आलम कहते हैं कि आने वाले निजात दहिंदा का, मरियम के बेटे यीशु का, खुदा के बेटे का, दुनिया के निजात दहिंदे का पहले से ऐलान किया गया। इसको प्रोटो एवेंगेलियम, पहली अंजील अव्वल कहते हैं। तो 3 बाब की 15 है, बहुत मशहूर है जी। तो चौथे बाब की पहली है और हाबिल, और 17वीं आयत काइन की औलाद, और 25वीं आयत ये आगे 5वें बाब में आदम की पुश्तें हैं। तो छठे बाब की पहली आयत खुदा का कहर, 7वें बाब की पहली आयत नूह का किश्ती में दाखिल होना, और 8वें बाब की पहली आयत, और फिर तूफान के बाद 20वीं आयत नूह की कुर्बानी, और 9वें बाब की पहली आयत, और फिर 18वीं आयत, और 10वें बाब में नूह की पुश्तें। आदम की पुश्तें 5वें बाब में बताई है, 10वें बाब में नूह की पुश्तें, और 11वें बाब में बाबल का पुत्र, और 10वीं आयत शाम का नस्बनामा, और 27वीं आयत तारा का नस्बनामा। तारा हजरत इब्राहिम का बाप है। तो फिर आगे बात चलती है। तो जो इस साल हमारी बाइबल स्टडी, 12 बाइबल स्टडियों का मरकजी मजमून है, जो मेरे पीछे मोटा मोटा लिखा हुआ है, वो क्या है? पढ़ो। बाइबल मुकद्दस की तारीख के अखबार, और उसके नीचे तो नहीं, ये 25 जनवरी के सामने मेरा मजमून लिखा है कि आज की बाइबल स्टडी क्या है। इब्तिदा में ये जो आपको मिला है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। चलो ज्यादा किसी की मेरी तरह से दूर की नजर कम हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मिला सबको, ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो मरकजी मौजूद है बाइबल मुकद्दस की तारीख का द्वार, और आज हम बाइबल स्टडी के इब्तिदा में बाइबल की वाइल तारीख। तो ये पहले 11 बाब, इसमें मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ तारीख और कबल तारीख क्या होती है। तारीख और कबल तारीख क्या होती है, इसमें फर्क मुख्तसर तौर पे हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, और फिर मैं आगे चलूंगा। तारीख वो होती है जिसके आप गिनती शुमार कर सकते हैं। आप साल गिन सकते हैं, दिन गिन सकते हैं, महीने गिन सकते हैं, डायरी गिन सकते हैं। मसलन आज 25 जनवरी है, ये तारीख की बात है। ये सन कौन सा है? 2021 है, ये सन की बात है। पिछले साल 2020 में ये हुआ, ये तारीख की बात है। एक वक्त आता है कि इंसान को सन का, साल का पता नहीं होता, और वो उसकी कबल तारीख होती है, प्री हिस्ट्री होती है। मसलन आपकी तारीख, जो मेरी भी तारीख, कब शुरू होती है? आप बताइए, आपकी हिस्ट्री कब शुरू होती है जी? जब हम पैदा हुए। वो तो हर साल आप मनाते हैं अपनी हिस्ट्री का आगाज। क्या करते हैं आप? हिस्ट्री का आगाज एक जन्मदिन मनाते हैं कि इस दिन मैं दुनिया में आया हूं, मेरी तारीख। लेकिन इससे आपकी कबल तारीख भी थी,
पैदा होने से पहले भी आपकी हिस्ट्री थी। वो क्या थी जी? हमारे माँ बाप नस्लनामा है। पहले बार करीब से लेते हैं, पहले तो 9 महीने आप अपनी माँ के बदन लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपकी अम्मी की शादी हुई, शादी से पहले उनकी एंगेजमेंट हुई, मंगनी हुई, और उससे पहले आपके बहुत दादा परदादा नाना नानी पता नहीं कहाँ वो थे, खुदा ने उन्हें मिलाया। ये आपकी कबल तारीख है। इसी तरह आपके अम्मी अबू की और होगी। हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है उससे पहले जो होती है कबल तारीख होती है, प्री हिस्ट्री। और जो प्री हिस्ट्री होती है उसको भी कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। मसलन बाइबल मुकद्दस की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री, मेरी बात को गौर से सुने, बड़ी बारीक सी बात है। बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री हजरत इब्राहिम से शुरू होती है, जो 1850 कबल मसीह में आए। यसु मसीह से 1850 पहले हजरत इब्राहिम आए। उससे पहले जो हजरत नूह है, हजरत आदम है, उनकी हिस्ट्री साइंस के लिहाज से, सालों के लिहाज से गिनी नहीं जा सकती, नापी नहीं जा सकती। लिहाजा हम उसको कहते हैं बाइबल मुकद्दस की प्री हिस्ट्री, कबल तारीख। हजरत इब्राहिम से हिस्ट्री शुरू होती है। और ये जब साइंस हिस्ट्री करती है तो सबूत मांगती है, दलाइल मांगती है, आसार कदीमा के कुछ निशान मांगती है, बहुत सारी और बातें, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक ये तस्वर बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री क्या होती है और प्री हिस्ट्री क्या होती है, तारीख क्या होती है और कबल तारीख क्या होती है। अगर मुख्तर तौर पे आपको थोड़ा सा पता चल गया ठीक है, बाकी आप कभी मौका मिला तो जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ अब्दियत और तारीख में क्या फर्क होता है। तारीख और अब्दियत, हिस्ट्री एंड इटर्निटी। तारीख वो होती है जो इंसानों की होती है, जो जमीन पर होती है। उससे पहले जब कोई मखलूकात नहीं थी, कोई कायनात नहीं, कुछ भी नहीं था, उससे पहले जो भी था उसको हम अब्दियत कहते हैं। और जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा उसको भी हम अब्दियत कहते हैं। तो अब्दियत का कोई वक्त नहीं होता, ये सिर्फ खुदा की होती है। हमारी हिस्ट्री होती है क्योंकि हम गिन सकते हैं इतने साल पहले, इतने साल बाद, हम प्रोग्राम बना लेते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं। हमारी हिस्ट्री होती है, तारीख। इंसान की तारीख होती है, खुदा की अब्दियत होती है, अज़ल से अबद तक। मसलन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के एक दिन 1000 साल एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 साल के बराबर। उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, आप उसको इदादा शुमार में, गिनती शुमार में नहीं ला सकते। तो ये अब्दियत होती है। तो बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज इब्तिदा। तो ये बहुत सारे रब्बी उलमा भी कहते हैं कि बाइबल का आगाज भी इब्तिदा से है और अलग से लेकर ये था। मैं वैसे बता देता हूँ आपको देखने के लिए, मुकाशवा की जो आखिरी आयत है उसका जो आखिरी लफ्ज है और उस लफ्ज का आखिरी हरफ है वो ये है। तो अलग से बाइबल शुरू होती है और ये पर खत्म होती है। ये दो इंतहाएं जो मैंने पहले बताई है ना, अल्फा और ओमेगा, अलफ और ये A to Z, ये दो इंतहाएं होती है, यानी जो कुछ भी इनके अंदर है वो सारा शामिल है। तो अब्दियत खुदा की होती है और तारीख इंसान की। मसलन यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके पहले बाब में पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में कलमा था, और फिर 14 आयत में लिखा है कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यानी जिस दिन कलमा पैदा हुआ उस दिन उसकी तारीख शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले उसकी अब्दियत थी, वो इब्तिदा में था। तो उससे पहले यसु मसीह कलमा अब्दियत में था, लेकिन जिस दिन बैतलहम में पैदा हुआ उस दिन उसकी यसु मसीह की हिस्ट्री शुरू हो गई। आप भी अपनी सालगिरह मनाते हैं, सारी दुनिया यसु मसीह की भी सालगिरह मनाती है। उस दिन यसु मसीह की हिस्ट्री शुरू हुई, तारीख शुरू हुई। तो अब्दियत और तारीख में बस यही छोटा सा फर्क बताना चाहता हूँ। अब हम आते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। 3 हिस्से हैं। हिस्सा अव्वल क्या है, ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। नहीं, मैं पीछे बैठा। चलो कोई बात नहीं, ये सारा कुछ इधर लिखा है, जो उधर लिखा है इधर लिखा है। हिस्सा अव्वल क्या है? नहीं, हिस्सा अव्वल खुदा का। हिस्सा दो क्या लिखा है? और हिस्सा सो
یہ جو پہلے 11 باب ہے یہ ان کے 3 مضمون ہے. دوبارہ پڑھیے. پہلا مضمون کیا ہے؟ خدا کا، کہ خدا نے کیا کیا. دوسرا حصہ 2 انسان کا، انسان نے کیا کیا. تیسرا پھر بھی خدا نے کچھ اور بات نکالی ہے. ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اس سے اول خدا کا عمل یہ تکوین کی کتاب کے کون کون سے باب میں ہے؟ پہلے اور دوسرے باب. ملا آپ کو؟ مل گیا کہ نہیں ملا؟ جس کو دقت مشکل پیش آئی مجھے بتانا، اشارہ کرنا، میں سمجھاؤں گا. تو جو خدا نے کیا وہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ تکوین کی کتاب اس کے کون سے باب؟ اوکے. تو حصہ 2 انسان کا جو رسپانس ہے، انسان کا رد عمل، انسان کا جواب، وہ کہاں ملتا ہے؟ تیسرے باب سے چوتھے باب تک. اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے، زخمی اور دکھی انسانیت کی نجات، یہ کس کس باب میں ہے؟ چھٹے باب سے 11 ہے. بات تو ساری بائبل میں چلتی ہے لیکن آج ہم نے صرف پہلے 11 باب ہی پڑھنے ہیں. تو 3 بڑے نقطے ہیں. پہلا بولے خدا کا عمل، دوسرا، تیسرا. اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں. جو حصہ اول ہے خدا کا عمل، تکوین کی کتاب پہلے دوسرے باب میں، اس میں 3 جز ہیں. خدا نے 3 عمل کیے بڑے بڑے. پہلا کیا کیا؟ تخلیق کی، ٹھیک ہے. دوسرا کیا کیا؟ انسان بنایا. تیسرا کیا کیا؟ فردوس. تو بریکٹ میں لکھا یہ آیتیں ساری ہم پڑھ چکے ہیں. میں ابھی اس کی سمری خلاصے ہی بتاؤں گا، ساری آیات دوبارہ نہیں پڑھوں گا، آپ گھر پہ بھی جا کے پڑھ. لیکن میں نے یہ ساری آیات آپ کو پڑھائی ہیں. میں نے اس لیے ایک ہی بار پڑھا دی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی وقت کم پڑ جائے. تخلیق، تکوین کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت سے ابتری اور انتشار سے ترتیب اور تخلیق، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ سنسان اور اندھیرا اور گہراؤں میں، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی. اور خدا نے کلمہ کیا، تخلیق کی، اور سارا کچھ انتظام میں آ گیا، ترتیب میں آ گیا. اور خدا نے کہا، ہر چیز کے بعد خدا نے کہا یہ بہت اچھا، ویل ڈن. اور یہاں علم الہیات ہے کہ خدا کیا کیا کرتا ہے. پہلا ہے کہ خدا خالق ہے. خدا خالق ہے. خدا سب کچھ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا رسولوں کا عقیدہ آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اتوار کو ہی پاک ماس میں بھی پڑھتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ بس 2 باتیں بتائی گئی ہیں، قادر مطلق باپ اور آسمان اور زمین کا خالق. یہ بہت بڑی صفتیں ہیں. پرانے عہد نامے میں خدا کی 2 بڑی صفتیں ہیں. ایک خالق جس نے کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ پیدا کیا اپنے کہنے سے، الفاظ سے، کریٹر. اور دوسرا قادر مطلق، وہ اشارہ ہے خروج کی طرف. خروج کی طرف وہ سمندر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، بیابانوں میں روشنی لگا سکتا ہے، جہاں کوئی فصل نہیں، کھیت نہیں، وہاں من اور بٹیرے برسا سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق اس کے اتنی قدرت ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ 2 بڑے واقعات پرانے عہد نامے میں سب سے بڑے واقعات ہیں. پہلا تخلیق اور دوسرا خروج. خدا قادر مطلق اور خالق. رسولوں کے کلمے کا پہلا عقیدہ دوبارہ پڑھیے. میں ایمان رکھتا ہوں بس وہ مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. یعنی خلق بھی کیا ہے اور مالک کے معنی اس کا کنٹرول بھی ہے، جب جی چاہے جو جی چاہے کر سکتا ہے. خالق بھی ہے، اسی طرح وہ میرا، آپ کا، سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. تو یہ رسولوں کے عقیدے کا جو پہلا ہے. تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ پہلی بات خدا کل کائنات کا خالق ہے. اور کائنات میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک میں 3 حصے بناتا ہوں. یہ کہیں لکھنا ہے تو لکھ لے، یاد کرنا ہے تو یاد کریں. آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے. اس کو ہم کہتے ہیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں. آپ کو بولے کہ کون 3 حصے بتائے میں نے؟
आसमान पर, जमीन पर, जमीन के नीचे। आसमान के पर के मानी है जो कुछ भी फिजाओं खिलाओं में होता है, आप जानते हैं ये लंबी फहरिस्त है, साइंस भी इसके मुताबिक बताती है आसमानों में क्या होता है, खिलाओं में क्या होता है। दूसरा हिस्सा क्या है, जमीन पर। जमीन पर क्या क्या होता है, मोटा मोटा बता दें। इंसान होते हैं, पौधे होते हैं, निबातात होती है, और परिंदे चिरिंदे माल मवेशी होता है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये ज्यादा। और जमीन के नीचे पानियों में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपने सिर्फ मछली कहना है क्योंकि आपको मछलियां पसंद है, बहुत कुछ होता है बेहद। और जमीन पर हम एक बात भूल गए, बियाबान भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, सहरा भी होते हैं, झीलें भी, बहुत सारा कुछ होता है, वो अर्जियात में बहुत कुछ होता है। इसको हम कहते हैं, जो 3 हिस्से मैंने बताए, कौन से 3 हिस्से बताए? इसको हम कहते हैं यहूदी इल्मुल कायनात, ज्यूश कॉस्मोलॉजी, बाइबल का इल्मुल कायनात, कि बाइबल के ख्याल में इल्मुल कायनात क्या है, सारी कायनात में क्या क्या शामिल है, आसमान भी, आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे। हम जो इंसान हैं उस सारी कायनात का बहुत छोटा सा हिस्से हैं। कायनात तो बहुत बड़ी है, कायनात तो बहुत बड़ी है। जमीन पे पानी ज्यादा है, खुश्की कम है, 1/3, 1/3, और उसमें भी जहाँ इंसान बसते हैं वो तो बहुत ही कम है। और जो साइंस जानते हैं बच्चे, वो उन्हें पता है, जब जो सैयारों का आसमान के फल्कुल इजराम फल्की का नक्शा बनाते हैं, तो बड़े बड़े सियारे, तो जमीन तो सबसे छोटा सा इतना सा है, और उस छोटी सी जमीन में 3-2 से पानी आएगी, सब खुश्की, और उस खुश्की में भी थोड़ी सी जगह जहाँ इंसान आबाद है। तो ये सारा, तो इल्मुल इंसान। दूसरा नंबर, इंसान को भी खलक किया, नारो नारी खलक किया, ताकि एक दूसरे का सहारा बने, जिंदगी इकट्ठे मिलजुल कर गुजारे, और शराकत में गुजारे, बामियत में गुजारे, म्यूचुअलिटी, एक दूसरे को मानी और मामूरी दे, और खुदा की सूरत और खुदा की मानक, खुदा की शक्ल सूरत पर बहुत बड़ी आज़ादी मिली है इंसान को, जिंदगी मिली है, और फिर आज़ादी की जमीन पर इख्तियार मिला है, बहुत सारी और बातें भी मिली हैं। तो इंसान कायनात की अरूज है, मेराज है। और हम थोड़ा सा आगे करते हैं, हिस्सा 2 में फिरदौस, तीसरा हिस्सा भी पढ़ लें, फिरदौस। इल्मुल कायनात मैंने बता दिया, फिरदौस में वो अभी मैं सारी बातें तशरीह में नहीं जा सकता। फिरदौस के मानी है खूबसूरत और फजल से पुर, इंतहाई इत्मीनान, जो पहली शक्ल थी इंसान की खुदा के साथ रहने की, हर तरफ मोहब्बत, हर तरफ आज़ादी, हर तरफ फजल, और 2 नेमतें थी, 2 दरख्त दिए, हयात का दरख्त और पहचान का दरख्त। इंसान, खुदा ने इंसान को जिंदगी भी दी और पहचान भी दी। ये बहुत बड़े तोहफे हैं इंसान के लिए, कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो बुरा इस्तेमाल करेगा तो गुनाह होगा, अगर वो अच्छा इस्तेमाल करेगा तो नेकी होगी, बुरा इस्तेमाल करेगा तो बदी की वजह से वो उस इत्मीनान से बाहर फेंक दिया जाएगा, उस अदम से बाहर फेंक दिया जाएगा। अभी हम हिस्सा 2 की तरफ जाते हैं। इंसान का रद्द-ए-अमल, 2 रद्द-ए-अमल है। पहला क्या है? गुनाह। यहां से बदी का आगाज होता है। आदम और हवा ने भी की, फिर उसके बेटों ने भी की, और यहाँ इखलाकियात की बात आती है कि इखलाकी हवाले से इंसान गिर गया। गुनाह और मौत में जकड़ा गया। बहरहाल ये जो लफ्ज मौत है, मैं मुख्तसर तौर पे बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मौत खुदा की खलक करदा नहीं है। ये इंसानी से बाद में फिर कभी इस पे बातचीत कर लेंगे, बहस कर लेंगे। लेकिन हिकमत की किताबों में भी इंसान अपने गुनाह से मौत लाता है। ये एक बदन में होने का ये एक फितरती नतीजा है। लेकिन खुदा की तरफ, क्योंकि खुदा जिंदगी का खुदा है, खुदा किसी की मौत नहीं चाहता। ये अंबिया कराम में भी आया है। तो ये एक मुश्किल सवाल है मौत का भेद, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फैसला करती है
کہ خدا جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ موت پیدا نہیں کر سکتا۔ حصہ 100، جب انسان نے گناہ کیا، گناہ گار ہو گیا، زخمی ہو گیا، دکھ میں چلا گیا، تو پھر بھی خدا نے اسے نہیں بھولا اور خدا نے اس کے لیے نجات کا امکان، نجات کو ممکن بنایا۔ اور اس میں 2 پوائنٹ ہے، ایک طوفان جس میں دنیا کی اثر نو تخلیق ہے، اور عہد۔ خدا نے، جیسے میں نے پہلے کہا، خدا نے بحر المقدس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ عہد باندھے۔ 2-3 عہد کی میں بات کروں گا۔ ایک حضرت نوح سے، زندگی کی اثر نو تخلیق، دوبارہ سے زندگی کا شروع، اور وہی جو خدا نے پہلے انسان کو برکت دی تھی وہی نوح کو دوبارہ برکت دیتا ہے۔ بڑھو، برکت دی، بڑھو، پھلو، پھیلو، اور زندگی کو، کائنات کو معمور و محکوم کرو۔ اور دوسرا جو بڑا عہد ہے جو بائبل المقدس میں مشہور ہے، وہ حضرت ابراہیم کا عہد۔ حضرت ابراہیم کو عہد یہ ملا تھا، تجھے اولاد بھی میں کثرت سے دوں گا، تجھے زمین بھی میں کثرت سے دوں گا، اور تجھے عزت بھی میں کثرت سے دوں گا۔ تو اس کو ہم کثرت کا عہد کہتے ہیں۔ یہ جب مصر میں لوگ پہنچے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے مصر میں پہنچے، اور بعد میں حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں، اور پھر بعد میں یوشوا کی رہنمائی میں وعدہ کی سرزمین پر پہنچے، تو یہ عہد پورا ہو گیا تھا۔ ہر طرح سے کثرت مل گئی تھی، اولاد کی کثرت، زمین کی کثرت، اور برکت، عزت کی برکت کی کثرت۔ تیسرا عہد جو بہت مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ سے، وہ سینا پر جہاں شریعت ملی، جس کو ہم 10 حکم بھی کہتے ہیں مختصر طور پر، لیکن شریعت 10 حکموں سے بڑی ہے۔ وہ عہد وفاداری کا عہد ہے۔ انبیاء کرام نے حضرت ابراہیم کے عہد پہ زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ وہ تو پورا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ والے عہد پہ زور دیا تھا کہ وفادار رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ عہد سے برگشتہ ہو گئے، شریعت سے برگشتہ ہو گئے، پھر گئے، اور پھر خدا نے سزا دی، تعلیم کی، خدا نے رائے راست پر لایا، جلاوطنی میں بھیجا۔ لیکن انبیاء کرام نے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کے عہد کو زیادہ نہیں دہرایا، نہ اس کا زیادہ ذکر کیا ہے، نہ اس پہ زور دیا ہے، کیونکہ وہ پورا ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے عہد کو، جو وفاداری کا عہد تھا، وہ آج بھی ہر مذہب میں، مسیحی مذہب میں، یہودی مذہب میں، آج بھی وفاداری کے عہد پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی بار بار کہا، اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے خدا کو پیار کر، اور بہت ساری باتیں۔ طوفان، عہد، آخر پہ نقطہ ہے بابل۔ انسان کا ایک بار پھر گناہ کا رد عمل، پھر خدا انسان نے، ہم نے وہ چیپٹر سے اس طرح پورا نہیں پڑھا، 11واں باب، پھر انسان نے چاہا کہ آئیں اب اپنا نام بنائیں، نام پیدا کریں، اور ایک برج بنائیں جو دنیا کے آخر تک رہے گا۔ اور ہمارا خدا کے مقابلے میں انہوں نے یہ کام کرنا چاہا۔ جب ہم 11 باب پڑھتے ہیں تو وہ اس میں پتہ چلتا ہے، اور خدا نے زبانوں کا انتشار پیدا کیا کہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھے، اور وہ بائبل مقدس کے مطابق وہ رسولوں کے اعمال 2 باب میں پینتیکوست کے دن پر صحیح ہوتا ہے۔ بابل میں لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے، اور خدا نے ان پہ انتشار بھیجا، اور وہ مختلف زبانیں ایک دوسرے کی سمجھ نہ سکے، اور پینتیکوست پہ لوگ بہت ساری زبانیں بولتے تھے، بہت سارے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اپنی اپنی بولی بولتے تھے۔ لیکن جب رسولوں نے بشارت دی زندہ یسوع مسیح کی، تو وہ سب کہتے تھے کہ ہم اپنی اپنی بولی میں خدا کا کلام سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو پینتیکوست پر انہیں سمجھنے اور سننے کی نعمت ملی، بابل میں بولنے اور منتشر ہونے کی سزا ملی کہ وہ بولتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، لیکن پینتیکوست پر سننے اور سمجھنے کی طاقت انہیں ملی۔ اور ایسے ساری بائبل مقدس میں جو وعدے ہیں، جو پیش گوئیاں نبوتیں، وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو آج کی ہم بائبل اسٹڈی میرے ساتھ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ جس دن میری بائبل اسٹڈی ہوتی ہے اس دن رسم افتتاح بھی ہوتا ہے، تو آدھا پونا گھنٹہ ادھر لگ جاتا ہے۔ جس دن میری اگلی بائبل اسٹڈی آنی ہے اس دن رسم افتتاح ہونا ہے، اختتام ہونی ہے،
सर्टिफिकेट मिलते हैं, उधर भी मेरा पौना घंटा चला जाता है। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ मुख्तर तौर पर, नतीजे के तौर पर, खुलासे के तौर पर बताना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस के पहले 11 बाब, तकवीन की किताब के पहले 11 बाब, इनको हम तारीख नहीं बल्कि कबल तारीख, हिस्ट्री नहीं प्री हिस्ट्री कहते हैं। मैंने हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का, कबल तारीख का और अब्दियत का थोड़ा सा मुख्तर तौर पर फर्क बताया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इन 11 बाब में खुदा का काम, खुदा का अमल और इंसान का रिस्पॉन्स, इंसान का जवाब, इंसान का रिएक्शन, इंसान का रद्द अमल बताया गया है। और इंसान का रद्द अमल गो गुनाह का है, बदी का है, उसके बावजूद भी खुदा नहीं भूला। तो ये तारीख में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहला कि खुदा मेरी जिंदगी का खालिक और मालिक है, उसने मुझे खलक किया है और मेरी जिंदगी का मालिक है। मेरी जिंदगी का जो भी होता है सब कुछ उसी से है। दूसरा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँ, खुदा के खिलाफ भी हो जाऊँ, फिर भी खुदा मुझे प्यार करता है। खुदा मुझे फिर कोई किसी ना किसी तरीके से राह रास्ते पे लाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है, खुशी है कि मैं 1000 बार गिर जाऊँ, जैसे ज़बूर कहते हैं कि जो रास्तबाज है, सादिक है, वो भी दिन में कई बार गिरता है, फिर भी खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा मुझे उठा खड़ा करता है। तो ये जो पहले 11 बाब हैं, कबल तारीख है, प्री हिस्ट्री है, अवाइल तारीख है, गो इसमें इंसान के पहले गुनाहों का जिक्र है, बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा निजात का वादा देता है। और ये बिल्कुल हूबहू स्टोरी है, हूबहू तस्वीर है मेरी अपनी जिंदगी की और आपकी अपनी जिंदगी। जितनी भी उम्र हमारी है, अगर हम पीछे देखें तो ये सारा जो मंजर है पहले 11 बाब का, वो किसी ना किसी शक्ल में मेरी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में। खुदा हमें बहुत नेमतें देता है, हम कई बार गिर जाते हैं, खुदा अपनी मोहब्बत में फिर हमें उठाता है, कोई ना कोई वसीला बनाता है। ओ खतरे ते टोए ते खोबिया बिचो ऐ मैनू कढ़ के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नूं सुवारी। ये जितनी भी आज हमने हिस्सा अव्वल खुदा का अमल, हिस्सा 2 इंसान का रद्द अमल, हिस्सा 3 जख्मी और दुखी इंसानियत के लिए निजात, ये इसका लुबे लुबाब है। तो मैं एक बार फिर खुश हूँ कि इस साल फिर ये सिलसिलावार बाइबल स्टडी शुरू हुई है और मैं बरकत चाहता हूँ कि आने वाले जितने भी मुकर्रीन होंगे, ये 12 मौज़ूआत बाहर सामने लिखे हुए हैं, तो तारीखें भी लिखी हुई हैं, वो सारे आप सीखेंगे और उम्मीद है कि बाइबल मुक़द्दस की तारीख के द्वार सीखेंगे। इस साल मैं भी निसाबी किताब की बात करना चाहता हूँ। इस साल जो किताब हम निसाब के तौर पर ले रहे हैं वो ये है, हम इसकी बहुत मशहूरी करते हैं, बहुत खूबसूरत किताब है, ये 25 फुट लंबी है। मैं कल फैसलाबाद में था, मैं लोगों को दिखा रहा था और मैंने उधर एक बात कही, वो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ। ये 25 फुट लंबी है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो खरीद के घर लेके वहां जाके नापते रहे। तो ये 25 फुट लंबी है। तो बाइबल मुक़द्दस की एक एक बात इसमें लिखी है। ये होगी हमारी निसाबी किताब। जो पीछे इश्तिहार लगा है, पोस्टर लगा हुआ है, इसके पस मंजर में इस किताब की तस्वीरें हैं, थोड़ी थोड़ी आपको नजर आ रही होंगी, वो फीकी फीकी। तो ये ऊपर, तो ये इस साल की निसाबी किताब है। इसके अलावा एक और निसाबी किताब है, बुनियादी बाइबल स्टडी, छोटी सी किताब है, बहुत ही मज़ामीनों से भरी है। इसके 10 बाब है और हर बाब में 20 मज़मून है। 10 बाब है, हर बाब में 20 मज़मून है। इस किताब में 200 मज़मून है और सारी बाइबल मुक़द्दस का इसमें खुलासा है। अक्सर लोग हमें पूछते हैं जी बाइबल स्टडी करने के लिए किताब बताएं, और फिर कहते नहीं, वो चाहते हैं एक ही दिन में सारी बाइबल आ जाए हमें और एक ही 10 सफ़े वाली किताब मिले, उसी से सारी बाइबल आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर बाइबल मुक़द्दस का इल्म होता है। बाकी 4 कलाम कैलेंडर भी हैं, वो हम अगली बार आपको दिखाएंगे। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और जो SPS के स्टूडेंट्स हैं, खत किताबत के जरिए स्टूडेंट्स हैं, उनको हम बहुत बहुत खुसूसी रियायत देंगे। हमारा मकसद किताबें बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि आप पढ़ें।
آپ کے گھر میں یہ جائے، آپ کے بچے بھی دیکھیں، آپ بھی پڑھیں۔ تو میں آپ سب کو آج کی بائبل اسٹڈی کی برکات مبارک کرتا ہوں۔